Very good morning to one and all. We'll start the session in next few minutes. Max by 11:05 we'll be starting the session as most students are joining in. Good morning everyone. Good morning. लव कोश एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो that we are starting in 5 minutes. अपने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो. थैंक यू दर्शक. कहाँ तक न्यूज पहुंच गई है? थैंक यू. Good morning, Mansi. सुप्रभात प्रियांश. I request everyone to switch off the video. मौलिक सोलंकी वीडियो ऑफ कर दो. वीडियो की कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को. थैंक यू. Yeah, Priyansh, yeah, we will start here. We'll start.
Mansi, we have not even started. I hope I am audible now. So we have not even started. Okay, a very good evening to one and all, and welcome to this session on life after IIMs, right? So we are just getting in touch with Mitresh, and somehow is not able to join in, and that's why we took another 3-4 minutes. So till the time, let's say, let us see if he can join in and if there is any issues or something. So voice nahi aa rahi hai, Priyansh is saying, guys, my voice not audible, मेरी voice aa rahi hai, nahi aa rahi hai, quick yes in the chat box, please. Is my voice audible? Not audible? Okay, my voice is perfectly audible. Thank you. Thanks everyone. Thank you. So sorry for all this delay, and let's see if I mean we are trying hard if Mitresh can join in because I don't know there is some issue at his end. So हम लोग जो बात करना चाह रहे थे आज इस सेशन के बारे में and will not waste your time for sure कि मैं आप लोगों का time waste नहीं करूंगा. So let's see if we can join in. But till the time, let's start the session. Let's not waste your time because of Sunday को
11 बजे सेशन को सुनने के लिए आए हैं, तो राइट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स का टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, राइट। हमने कितनी सारी चीजें हम लोग होल्ड पे करके आते हैं, एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दैट। सर बताइए, फटाफट शुरू कीजिए सेशन को। सो बाय द वे, दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम वन ऑफ द co-founder at eCoaching. And today the idea was that to get the student in place who has been there, done that, and he can, talk about life after IIMs. So what I can do is, because I do interact with all the students out there, so मैं मेरा पक्ष भी रखूंगा, राइट, सेड व्हाट आई वाज गोइंग टू आस्क, एंड मैं उसके बाद आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या कंसर्न है। सो मैं पहले इस सेशन में आप लोगों से सुनना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू हियर फ्रॉम यू। क्विकली स्टार्ट राइटिंग इन द चैट बॉक्स दैट व्हेन यू आर हियर फॉर द सेशन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट यू वांट टू नो। क्विकली इन द चैट बॉक्स, प्लीज स्टार्ट quickly in the chat box, please. What do you want to know? What do you want to hear about? A quick yes in the, quick questions in the chat box, please. And we will have a very candid discussion. हम लोग कोई ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, हम लोग ज्यादा कोई कैट की बातें नहीं करेंगे, हम इन चीजों पे कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे टिपिकली कि ये सेशन लाइफ आफ्टर आईएम्स की जहां बात हो रही थी, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, all these things I'll talk about. Okay, so the first question which is coming up is opportunities after MBA. Okay, fine. What else? What else? Good to know that you want to know the opportunities after MBA. What else? What else you want to know? और बताइए, what else, guys? Okay, एक तो हो गया opportunities after MBA. What else? Why only IIMs? A very interesting question. I was waiting for this question to come. राइट, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन दो कि सर आईएम्स ही क्यों, लोग हमेशा बस आईएम्स 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 करते रहते हैं, ऐसा तो क्या है वो बताइए। Best specialization field, so we are talking about field, so I'll just note it down so that we don't miss out on any. So why IIMs, that's the thing which is coming up, why IIMs. Then we are also talking about opportunities, हम लोग opportunities की बात कर रहे हैं। Okay, what else? We are talking about specialization की हम लोग बात कर रहे हैं। सर specialization के बारे में हमें बताइए। Okay, I'll try. What else? Placements, sir, placements. Okay, placements, fine. What else? Though I'll not get much into this. Okay, is MBA best for career than other course? Okay, sir, is MBA best or not? वो बताइए. And by the way, this is a subjective question. I mean, let's see. In which sector? Okay, is ऐसा तो क्या है IIM की companies 40 लाख पैकेज दे देती है, सर वो बताइए सर। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मिनिमम स्कोर आई नॉट टॉक। पीयर ग्रुप, व्हाट कुणाल प्लीज थोड़ा उसको एलोबरेट कीजिए, पीयर ग्रुप के अंदर क्या पूछना चाह रहे हो वो बताओ। हाय जन्म, हाउ आर यू? लाइफ आफ्टर आईएम्स, इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन share with you based on my interaction with the many, right? So life after IIMs, you're talking about work experience or MBA. आदित्य बोल रहा है सर वर्क एक्सपीरियंस किया जाए या फिर MBA किया जाए। Okay, fine, that's again an interesting question coming up. Does MBA from top IIM help in entrepreneurship journey? Okay, so if let's say I want to get into something on my own, I want to be CEO, I want to be an entrepreneur, right? Will it help me or not? Okay, how to prepare for CAT? Prepare for CAT, अन्वेष आज थोड़ा कम बात करेंगे हम लोग। What impact does IIMs have on personal level compared to others? Okay, फाइन। सर का पैकेज बिल्कुल बता देंगे, सर का पैकेज हमारे को पता होगा। तो मिनिमम स्कोर इन कैट, तो सर खुद ही बताते। मिनिमम स्कोर इन कैट टू गो टू अ गुड कॉलेज, it is trend only, nothing else. Okay, what to expect after IIMs? How is corporate life going to treat us? Supriya is saying, would we able to cope up professional and personal life after entering corporate life? Interesting question. How peer groups are made? Peer groups kaise bante hain? Okay, so this session is for CAT but also gives detailed information. No, this session is not also for CAT only, Vivek. The session was only about MBA. To be honest with you, the session is not about CAT. The session is about MBA, right? So as I said कि मैं आप लोगों से यहाँ कहीं पर भी वो बात नहीं करने वाला क्यों करना चाहिए, किसने करना, I mean, मैं आप लोगों से ये बात नहीं करूंगा कि आप पढ़ाई कैसे करें, लास्ट पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. That is not the objective of this particular session. Is okay. What else? CAT syllabus as of now, yes. College entrance, yes. If you want to answer that, yes, it is same only, exactly same. No issues there. No issues there at all. Okay. What else? What else?
MBA good care or not? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो रहे हैं, एक एक करके इन क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं. हाउ टू फेस इंटरव्यू, हाउ टू स्टार्ट सपोर्टिंग अवरसेल्फ फाइनेंशियली राइट आफ्टर एंटरिंग IIM. ओके सुप्रिया, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन. चलो लेट्स गो. एक एक करके फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को बढ़ाएंगे. एंड गाइस, ये क्वेश्चन सबके लिए जरूरी है, बिकॉज हम ये क्वेश्चंस के अंदर, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई वाज लुकिंग एट, हमने क्वेश्चंस के अंदर जब हमने सेशंस का ये सोचा था ये सेशन करने का, द आइडिया वाज दैट ओनली दैट लेट्स टॉक कैंडिड विद द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के कंसर्न बहुत है, जैसे सुप्रिया का कंसर्न बहुत जेन्युइन है. सर IIMs की फीस इतनी ज्यादा है, चलो पैकेज मिल भी गया, पहले तो फीस बताओ कैसे भरे, राइट? और अगर पैकेज मिल भी गया तो शुरू में तो सपोर्ट करना पड़ेगा. वी हैव लोन्स टू टेक केयर ऑफ, सो ऑल दिस थिंग्स वी टॉक अबाउट. ठीक है, डन. सो एक एक करके इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई IIMs, राइट? सर हम IIMs के अंदर ऐसा क्या, मतलब आप IIM कर रहे हो, व्हाई IIMs, ऑल दिस थिंग्स वी वांट यू टू अंडरस्टैंड. सो गाइस देखो, एक मैं ले लेता हूं IIMs, ठीक है, एंड एक मैं ले लेता हूं एक अदर कॉलेजेस. ठीक है, मैं अदर कॉलेजेस की बात करता हूं और इसमें हम लोग बेनिफिट की बात करते हैं. अगेन मैं यहाँ पर, मेरा तो अगर तुम बोलोगे, मैं हमेशा, अगर तुमने मेरी क्लासेस वगैरह के अंदर स्टूडेंट्स जो मेरे क्लास के यहाँ ज्वाइन हैं, उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि IIMs ना होना इज नॉट एंड ऑफ लाइफ. मैं हमेशा ही ये डिस्कशन करता हूँ, बट मैं उसके साथ साथ ये भी बोलता हूँ दैट पॉइंट इज IIMs आर गुड. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर मेरा प्रोफाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं जा सकता. आज अभी भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर IIM में एडमिशन होगा ही नहीं. सो इसमें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, बट IIMs के बेनिफिट तो हैं ही, इसको नकारा नहीं जा सकता, राइट? सो व्हाट आर दोस बेनिफिट्स सर, जिसके बारे में लोग IIMs को इतना ज्यादा, और किसी ने मेरे से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, ऐसा तो क्या सर, वो बताइए, राइट? लेट्स सी, थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं. सो IIMs के अंदर टेंजिबल बेनिफिट्स, सबसे पहले बहुत इजी है बोलना. सो द टेंजिबल बेनिफिट फर्स्ट ऑफ ऑल इज सर प्लेसमेंट्स, राइट? प्लेसमेंट्स आर सुपर. एंड यहाँ पर अगर हम IIMs की बात कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, मैं यहाँ पर ओके, सो जस्ट गॉट अ पिंग फ्रॉम Maitresh, she must be joining in sometime soon. Okay, good. चलो, so again he will okay, he'll be able to guide you guys properly till the time. Let's continue the discussion. So हम लोग placements की जहां पर बात करते हैं, ठीक है? So placements के अंदर obviously ज्यादा है, उसके अंदर कोई दिक्कत है ही नहीं. मतलब पॉइंट इज प्लेसमेंट्स की जहां हम बात करें, अब यहां मैं जो भी बात कर रहा हूं, मैं टॉप IIMs की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट ABCKLIS, मैं इन 7-8 IIMs की बात कर रहा हूं. बाकी के IIMs का प्लेसमेंट से कॉलेजेस बाकी भी तुम्हें मिल जाएंगे. अब ऐसा तो क्या कि जब बात आती है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में, सो व्हाट बेसिकली इज सिनेरियो व्हाई कंपनीज गो फॉर ऑल दिस थिंग्स. पहली चीज, आर देयर 100% गारंटीड प्लेसमेंट? धनश्री, गारंटीड प्लेसमेंट कहीं पर भी नहीं होता, नॉट इवन IIMs. ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए. हमें ऐसा लगता है हमने कॉलेज के अंदर एंट्री कर लिया तो प्लेसमेंट हमें मिल ही जाएगा. नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब IIMs के अंदर प्लेसमेंट, Maitresh I think has joined in, and I'll just take one more minute and then I think Maitresh will continue. So जब हम कॉलेजेस की बात करते हैं, when we specifically talk about कॉलेजेस, एक अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छा प्लेसमेंट क्यों मिलता है? इट ऑल बॉयज डाउन टू स्टूडेंट्स. अब अच्छा स्टूडेंट ही अंदर जा रहा है. आप लोग वो 99 परसेंटाइल की जर्नी करके, 99.97 परसेंटाइल की जर्नी करके अच्छे कॉलेजेस के अंदर जा रहे हो. सो इट्स नॉट कि आपको कॉलेज प्लेसमेंट दिलाता है, आप प्लेसमेंट लेते हैं खुद. बिकॉज वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का पीयर ग्रुप, आपकी खुद की लर्निंग, आपकी रीडिंग हैबिट्स, वो आपको प्लेसमेंट दिलाती है. कॉलेज कभी भी प्लेसमेंट नहीं दिलाता. तो धनश्री, नॉट इवन IIMs कैन गारंटी 100% placement. So with this, I think I want to welcome Maitresh. I think he has some internet issues there, so he was not able to join earlier. Maitresh, welcome to the session, and thank you. So hopefully, yeah. So a very good morning. So Maitresh is joining us from Amsterdam, and Amsterdam, I don't know कितने लोगों को पता भी होगा, it's the capital of Netherlands, and वहां पर 7:30 बजे होंगे. Maitresh, correct me if I'm wrong. हाँ, 7:30 बज रहे हैं. Yes, and I really want to apologize to everyone. Really sorry for being so late. But pata nahi, my Wi-Fi wasn't working. Yeah. No issues. So it's 7:38 there, and Maitresh, very sorry to wake you up so early today. I'm sure you must be tied up with other things as well. So Maitresh,
का प्रोफाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. इज IIT Roorkee product and then after did his MBA from IIM Bangalore. In between he was working with companies like Uber and then he has have a small work experience with in the consultancy firm as well. So this is what Mitresh is doing and as of now again he is working with Uber only और वहां पर ये data management प्रोफाइल के अंदर वहां पर placed है. So Mitresh, again, a very good morning from behalf of all the students. So the idea of today's session, Mitresh, was to have a candid conversation, right? इन लोगों को CAT के बारे में सब कुछ पता है. इन लोगों को पता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, and they are working hard as far as their CAT preparation is concerned. So the idea of getting you on board was कि हम लोग के कुछ common concern है. I mean, all the students इनके कुछ common concern है. तो आपके आने से पहले मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था कि आपके क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, क्या-क्या कंसर्न है जो आप इस सेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देयर आर सम कॉमन कंसर्न जो मैं लिस्ट डाउन करूंगा एक-एक करके एंड आई वांट इफ यू कैन आंसर दीस कंसर्न्स, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अप इज why IIMs, right? So MBA तक तो ठीक है सर, why IIMs? तो एक क्वेश्चन आ रहा था सर, IIMs में ऐसा तो क्या कि 40-40 लाख के पैकेज मिलते हैं, ऐसा तो क्या होता है? So over to you, start with this answer. Okay, so मतलब I'll try to answer it in two parts. One is why IIMs and फिर why 40 lakhs या फिर why high packages IIMs के अंदर मिलते हैं. So starting with why IIMs, तो अब आप इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि सो मैं बताता हूँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था एंड व्हाट आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम IIMs वाज कि सो द नंबर वन थिंग व्हाई आई वांटेड टू गेट इनटू IIM वाज नेटवर्क. सो द काइंड ऑफ पीपल दैट यू मीट इन विद इन योर बैच, जो आपके साथ लोग पढ़ते हैं, वो भी कहीं काफी अच्छे कॉलेज से, काफी अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे वर्क एक्सपीरियंस के साथ आते हैं. तो जो आपकी लर्निंग होती है वो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती है. आप क्लासरूम के बाहर भी जब उनके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हो, उनके साथ एंड नॉट जस्ट ग्रुप प्रोजेक्ट्स, लाइक बहुत सारी अदर एक्टिविटीज होती है, फेस्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, जो चीजें आप उनके साथ करते हो तो एक अलग तरह का नेटवर्क बन जाता है. एंड लाइक अगर आप मेरा एग्जाम्पल लो तो जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ मेरा कंसल्टिंग के बाद, उसके बाद आई वांटेड टू स्विच टू डिफरेंट कंपनी, या फिर उसके बाद मेरे को एक और कंपनी में स्विच करना था. तो काफी इजी, मतलब इजी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक आपका इनिशियल जो फर्स्ट टच पॉइंट होता है ना, वो बहुत इजीली आपको मिल जाता है, क्योंकि कोई ना कोई आपका फ्रेंड, आपका बैचमेट उस कंपनी में ऑलरेडी काम करता होगा जो आपको रेफर कर देगा. या फिर अगर आपको आप अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपके पास और 10 लोग हो गए जिनसे आप बात कर सकते हो, उनकी कंपनी के बारे में समझ सकते हो कि वो लोग क्या करते हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट करता है तो आप वहां अप्लाई कर सकते हो. तो नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. सेकंड होता है IIMs का ब्रांड नेम. तो ब्रांड नेम है, इतनी बड़ी लेगेसी है, इतने सारे एलुमनाई एग्जिस्ट करते हैं, तो आप जब भी किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे उसको पता चलता है कि आप IIM बैंगलोर से हो या कैलकाटा से हो या अहमदाबाद से हो, उनका परसेप्शन चेंज हो जाता है. दे लाइक आप जो फर्स्ट हर्डल है ना, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आपका ऑलरेडी बन गया कि अच्छा ठीक है, आप IIM बैंगलोर से, अहमदाबाद से, कैलकाटा से, लखनऊ से, कहीं से हो, तो हाँ, लाइक यू हैव सम सब्सटेंस इन यू. उसके बाद फिर वो इंटरव्यू अलग डायरेक्शन में हो जाता है. दे विल स्टिल टेस्ट यू, वो फिर भी आपको ग्राइंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बन जाता है. एंड थर्ड, आई थिंक 40 लाख जो पैकेज की बात है, सो लाइक टू बी ऑनेस्ट, सबको 40 लाख का पैकेज नहीं मिलता, सबसे पहली चीज, ठीक है. ऑन एन एवरेज आई थिंक 25 to 30 रहता है. जो आपके हाई साइड ऑफ पैकेजेस होते हैं, वो सारे हाई साइड ऑफ पैकेजेस जनरली फाइनेंस के होते हैं, जो कि 40-50 वाले होते हैं. उस तरह के रोल्स अगर आप देखने जाओगे तो क्लोज टू शायद 10% ऑफ बैच को आपको, आपके बैच को 10% ऑफ पीपल को मिलेंगे, जो कि जो पैकेजेस होंगे आपके 45-50 के अराउंड, विच इज अगर आप प्राइवेट इक्विटी में जाते हो, फाइनेंस में प्राइवेट इक्विटी में जाते हो, VC में जाते हो, या फिर आप मार्केट्स में जाते हो, फाइनेंशियल मार्केट्स में, वर्सेस अगर आप कंसल्टिंग और इन सब में जाते हो, तो उसमें आपका ऑन एन एवरेज 30-35 रहता है, और वो भी आपके नेक्स्ट 20% ऑफ द बैच को मिलता है. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं, और कंपटीशन काफी हाई होता है, तो आपको फाइनेंस और कंसल्टिंग की जॉब्स के लिए काफी compete करना पड़ता है. इट इज नॉट इजी कि आपको
मिल जाएगा, क्योंकि आप ऐसे इमेजिन करो IIM के अंदर सब कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करके फिर आए हैं, तो इजी तो नहीं होने वाला है। Okay. So guys, there's a good competition first of all. Nothing is easy. अगर तुम्हें लग रहा है कि कैट क्रैक करके मैंने सब कुछ कर लिया है, ऐसा नहीं होने वाला है, स्ट्रगल आगे भी रहने वाला है। एंड प्लेसमेंट आई थिंक इज मेड अ वेरी डिसेंट स्टेटमेंट कि 40 लाख सबको नहीं मिलेगा। एवरेज प्लेसमेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ 20 से 25 लाख रुपए रहता है। बट यस, इफ यू हैव योर मेटल, अगर आप वो मेटल कंपनीज को दिखा सकते हो तो 1 करोड़ तक के पैकेजेस भी हमने जाते हुए देखे, राइट, बीट इंटरनेशनल लेवल पे ऑल्सो, बट हमने जाते हुए देखे। दैट इज समथिंग विच इज सेइंग। बट यस, आपको स्ट्रगल तब भी करना पड़ेगा, वहां जाके आप रिलैक्स नहीं हो सकते। और डोंट वरी, IIMS आपको रिलैक्स होने देगा नहीं, राइट, दैट्स व्हाट आई नो। So the next thing which is coming up is Mitresh ki, that is one thing which we know, that the intangible benefits is the perception, right? The moment you say that I am from I am Bangalore, the perception changes. And then you talk about peer group also. Apart from peer group, apart from this intangible benefit, how MBA, जैसे आपने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर लिया था, उसके बाद पहली चीज आपको MBA की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, और आपने जब MBA कर लिया, what changes you have seen in your professional career? Definitely. So, ठीक है. Now, so I'll try to answer it again in two parts. The first is why I did MBA. So I did MBA because I did my engineering. Uske baad I started working in L&T. So I wanted to explore core civil engineering. So I did that for like 6 months. But then I moved to Uber. So in Uber, so what happened with me was I had a peer group of people in Uber, all my colleagues, and most of them were ex-IIMs and ex-consultants. So that's why my inspiration came from when I used to see them in meetings, in problem-solving sessions, brainstorming sessions, unke communication skills, etc., etc. So, I always was able to see there is a difference. जिस तरह से मैं सोचता था, जिस तरह से वो लोग सोचते हैं, मतलब मेरा माइंडसेट काफी लाइक व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम, मैं सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता था, बिगर पिक्चर नहीं, मतलब लाइक बिगर पिक्चर इन द सेंस कि लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम जो कि शॉर्ट टर्म में सॉल्व होगी, शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने का उसको कुछ एक्स तरीका है, बट दे वुड सी इट कि शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने का एक्स तरीका है, बट लॉन्ग टर्म में इसके क्या इम्पैक्ट है। मतलब वो लोग और 4 चीजें देखते थे और 4 पैरामीटर्स इवेल्युएट करते थे। कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी डिफरेंस था, in terms of even not just communication skills but let's say presentations बनाना, right? आपको like हमारी इंजीनियरिंग के बाद एटलीस्ट मेरी ऐसी आदत थी कि एक स्लाइड होगी और एक स्लाइड के अंदर हम 50 मैसेजेस कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, वर्सेस दैट इज नॉट हाउ ऑडियंस जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो वो परसीव कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगी कि सीखनी चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई नेवर नेवर थॉट कि मैं MBA करूंगा, और कभी मेरे रोड मैप में था भी नहीं MBA करना। बट आफ्टर आई जॉइंड Uber, वर्कड विद माय कलीग्स, आई जस्ट थॉट कि मतलब सो देयर इज नो कोर टैंजिबल स्किल जो MBA सिखाएगा, बट जो इंटैंजिबल स्किल या इंटैंजिबल चीजें हैं लाइक द नेटवर्क, द कम्युनिकेशन स्किल्स, जो रिगर आपको IIMs प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ वो इतने सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इतनी सारी डेडलाइंस, और दे एक्चुअली मेक यू ऑनर देम। मतलब आप इंजीनियरिंग में ऐसा हो सकता है कि आपकी मंडे रात को 12 PM की डेडलाइन है, ठीक है, वो एक्सटेंड होकर के ट्यूसडे सुबह है, ट्यूसडे रात 12 PM हो गई। MBA कॉलेजेस में नहीं होता, आपके ग्रेड्स कटते हैं, आपके नंबर्स कटते हैं अगर आप डेडलाइन ऑनर नहीं करते हो तो। मतलब दे मेक यू ग्राइंड, दे मेक योर लाइफ वेरी रिगरस। तो एक ये रीजन था, और सेकंड रीजन जो प्रशांत सर ने पूछा कि Changes in your this thing, yeah. हाँ, करेक्ट, चेंजेस इन माय पर्सपेक्टिव। सो चेंजेस इन माय पर्सपेक्टिव, आई सी माई सेल्फ, सो आई विल टेल यू, जो मेरी कुछ तो देयर वर सर्टेन वीकनेसेस ऑफ माइन। मुझे प्रेजेंटेशन से डर लगता था, ठीक है, सब कुछ चला गया है। आप इतनी प्रेजेंटेशन देते हो ना वहां पे कि आपका डर खत्म हो जाता है कि अगर आपको बोल दिया जाए ना कि अभी भी कि आपको 2 घंटे बाद इस XYZ टॉपिक पे प्रेजेंट करना है, आप 5 स्लाइड बना करके प्रेजेंट कर लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज कि इन टर्म्स ऑफ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन, बट अगर आपको कोई एक टॉपिक है जो आपने आज तक सुना भी नहीं है, पर आपको उसके ऊपर डिबेट करना है, या फिर आपको उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखना है, मतलब थिंग्स जस्ट बिकम वेरी, मतलब
कैसे लाइक हाउ टू पुट इट इन अ बेटर वे इज दैट कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, या फिर चीजें प्रोसेस करने की जो कैपेसिटी है वो काफी इंक्रीज हो जाती है। मतलब मल्टीटास्किंग बिकम्स लाइक सुपर इजी फॉर यू, बिकॉज आप इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हो इन द बी स्कूल कि अब आपको इन योर प्रोफेशनल लाइफ वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने लगती है। So it's So like that is the what I've time done. management skills, if I'm not Correct. wrong. So Yeah. time management skills, आपको वहाँ deadlines match करनी है, and what Maitresh was saying, I can relate कि हम engineering के अंदर तो 11 बजे की deadline है, हम 10:30 बजे project submit करते हैं, अगर करते भी हैं time पे तो, and IIMs के अंदर ऐसा नहीं चलता। In fact, students are tuned to that कि deadline से at least 2 घंटे पहले, so हम लोग जो बोलते हैं ना, एक रिहर्सल कर लेना, एक क्रॉस चेक कर लेना, दैट इफ आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक और समथिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं कॉलेज के अंदर, जो आपके प्रोफेशनल, मैं कह रहा हूँ प्रोफेशनल भी नहीं, एटलीस्ट पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, दैट हाउ टू मैनेज योर टाइम, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज कमिंग अप, Maitresh, is general engineer male, and I think we had this discussion in the front cabin also, that I remember, right? So I think Maitresh has a very beautiful hobby of pisciculture. अभी भी चल रहा है Maitresh या नहीं? Pisciculture चल रहा है, नहीं, बंद कर दिया? नहीं सर, अब एम्स्टरडेम में अभी तक आई हैवंट स्टार्टेड। मतलब आई अब वहां मूव्ड तो हियर बहुत लाइक कैनाल्स हैं यार, 2 मतलब वहां तो months बहुत बैक। कुछ मिल जाएगा। हाँ हाँ, मतलब मैं सिर्फ अभी आई हैव जस्ट मूव्ड हियर 2 months बैक, तो अच्छा, still still settling in the new country. fine. So pisciculture, by the way, it's basically, fishes का breeding करना for commercial purpose probably, or for interest purpose. He does it for interest purpose, so that is pisciculture, right? So I still remember इसका वो topic मेरे पास interview वाला अभी भी है, right? So I keep on reviewing it अभी भी. So मैं जो बोल रहा था कि Maitresh general engineering male, ठीक है, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का एक कंसर्न है कि हमारा तो प्रोफाइल नहीं है, 10th में स्कोर नहीं है, 12th में स्कोर नहीं है, दे गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। सो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, वर देयर एनी अदर कॉलेजेस इन योर माइंड, और इट वाज लाइक नहीं, मुझे आईएमसी करना है? So honestly for me it was IIMs ही करना है, and I was very clear कि मैं IIMs में ABCL ही टारगेट करूंगा, no other college। तो हाँ, मैंने कभी और किसी कॉलेज के लिए प्रिपेयर या फिर उसके एग्जाम भी नहीं दिए। ओके, सो इट वाज ओनली आईएम्स फॉर Yeah. Maitresh। बट एक चीज आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ जो यहाँ पर, कि अगर प्रोफाइल नहीं है, सो एमबीए करना ही छोड़ दें या एमबीए कर लेना चाहिए? अच्छे कॉलेज से कर लो। बिकॉज पॉइंट क्या है, अगर मैं ये जो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एंड आई वांट योर, आई मीन योर रिस्पांस और योर फीडबैक ऑन दैट, कि मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि यार अगर 10th 12th का या ये कुछ प्रोफाइल तुम्हारे अगर कंट्रोल में नहीं है, यू आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल दोस थिंग्स, सो Correct. एमबीए तो करना चाहिए ना, राइट? अब अगर आईएम नहीं मिलेगा तो कोई और मिलेगा, सो डू यू थिंक दैट यस, एमबीए करना फॉर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट इज गुड ऑप्शन, एंड इफ यस, जस्ट एलोबरेट ऑन दैट। Sure. So so my sense is also कि MBA, so first of all MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए should be a very personal choice, ठीक है? आपको डिसाइड करना है कि आपके करियर में MBA इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिकॉज अंडरग्रेड में आई इमेजिन लाइक हर किसी को एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होती है, दैट्स मैंडेटरी। आप सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एक डिग्री इज नेसेसरी। मास्टर्स एंड MBA इज नॉट वेरी लाइक रीजनेबल ऑल्सो, काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। तो यू हैव टू लुक लाइक, आई एटलीस्ट आई लुक्ड एट MBA एज एन इन्वेस्टमेंट, कि ये एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं अपने करियर के लिए। इसके रिटर्न्स क्या होने वाले हैं, ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि आप रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में रियलाइज नहीं करोगे, कि ये नहीं हो, अब ये नहीं कह सकते कि मैं 30 लाख दे करके अब मुझे 30 लाख की नौकरी मिली तो ये तो 1:1 का ROI हुआ मेरा। लाइक देयर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देयर हैज टू बी समथिंग कि फ्यूचर में मैं किस सैलरी तक जा सकता हूँ, किस किस कैडर तक मूव कर सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ। मतलब एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा मैथ्स लगानी है, प्लस सिर्फ उसको सैलरी से कंपेयर करना इज ऑल्सो नॉट फेयर। आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैं आई एम नॉट श्योर कितने लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, पर मैं बिफोर MBA नहीं करता था, मुझे इन्वेस्टमेंट के तरीके नहीं पता थे। यहाँ लाइक आफ्टर MBA मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, मुझे समझ में आया। तो ऑल दीज थिंग्स, न्यू हैबिट्स दैट यू बिल्ड एज पार्ट ऑफ द MBA आर इम्पॉर्टेंट। नाउ इन टर्म्स ऑफ कि अगर IIM नहीं मिलता है या फिर आपकी प्रोफाइल, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल इज वीक फॉर एन IIM, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई जरूर करना, ठीक है? Yes. डोंट अज्यूम, डोंट जज योरसेल्फ कि हाँ मुझसे नहीं होगा।
या फिर मेरी प्रोफाइल बहुत वीक है, बिकॉज हर एक एमबीए कॉलेज का, लाइक हर एक आईआईएम का अलग क्राइटेरिया है टू शॉर्ट लिस्ट, लाइक जस्ट नॉट कैट स्कोर, बट फॉर एग्जाम्पल IIM बैंगलोर है जो 999 पे फोकस करता है, बट देयर इज IIM कैलकाटा जो 999 पे फोकस नहीं करता। सो उसके अंदर आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अपने टाइम पे ये एनालाइज किया था कि ABCL का क्या क्राइटेरिया है। तो उनका जो एडमिशन ब्रोशर होता है उसमें दे हैव लाइक वेरी डिटेल्ड क्राइटेरिया मेंशन कि किस कैट का कितना वेटेज है, 10th का कितना वेटेज है, ग्रेजुएट का कितना वेटेज है, आपके वर्क एक्सपीरियंस का कितना वेटेज है। तो एंड उसके हिसाब से ना आप अपना बेस्ट ऑप्शन या फिर बेस्ट शॉट सिलेक्ट कर सकते हो। सो मेरे लिए बेस्ट शॉट वाज IIM बैंगलोर, बेस्ड ऑन माय ग्रेड्स, बेस्ड ऑन माय वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि IIM बैंगलोर वर्क एक्सपीरियंस को बहुत वेटेज देता है वर्सेस IIM कैलकाटा वर्क एक्सपीरियंस को वेटेज ही नहीं देता। तो जब मेरी परसेंटाइल आई थी, आई डिड नॉट हैव अ कॉल फ्रॉम IIM कैलकाटा एंड आई एक्सपेक्टेड दैट। तो ये चीज आप लोग को भी एनालाइज करनी चाहिए बिफोर गिविंग अप ऑन एनी ऑफ द IIMs। एंड सेकेंडली, अगर मतलब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, उसकी प्रोफाइल वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट, ही वाज विद मी इन L&T। मैंने L&T छोड़ के फिर उबर किया, फिर MBA किया। ही वाज लाइक सुपर इंस्पायर्ड कि क्योंकि उस लाइक L&T के अंदर लाइफ वाजंट दैट ग्रेट, मतलब आप इस एक गांव के अंदर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो, तो वो भी वही करता था। बट देन ही समहाउ गैदर्ड करेज, रिसर्च वगैरह किया, एंड देन ही जॉइंड NMIMS in Mumbai. And right now he's doing great. He is a risk analyst at American Express. तो आई एंड प्लस एंड उसका अगर बैकग्राउंड में आपको बताऊं तो वो L&T में मेरे साथ काम करता था, और उससे पहले उसने सिविल इंजीनियरिंग करी है जबलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। सो इट्स अ गवर्नमेंट कॉलेज, इट्स अ गुड कॉलेज। पर उसका भी यही था और उसको भी नहीं मिला IIM, बट ही डिड ग्रेट इन हिज लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि लाइक IIM नहीं हुए तो वो डोर शट हो जाता है। प्लस अगेन लाइक अगर किसी को बहुत ज्यादा एजुकेशन में इंटरेस्ट है, उनके लिए एक और तरीका भी होता है कि आप NMIMS या किसी और कॉलेज से MBA कर लो, थोड़े टाइम काम करो, और आप फिर अब्रॉड MBA भी सोच सकते हो। लाइक डू पीपल डू डुअल MBAs। आप INSEAD से कर सकते हो, आप बाहर के किसी कॉलेज से या कनाडा से कर सकते हो, अगर आपको बाहर मूव करने का मन है। तो ये भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो इट्स नॉट कि लाइक IIM इज द ओनली वे टू गो अबाउट MBA। So even I agree with the Mitresh, because point is आप अपनी करंट प्रोफाइल को देखो। आप अगर एक नॉर्मल कॉलेज बीकॉम से कहे हो, यू आर वेरी श्योर कि अभी आपको इंडस्ट्री के अंदर शायद कोई 10-15 हजार भी नहीं देगा। और वो क्यों नहीं देगा? बिकॉज वी डोंट हैव स्किल्स। ठीक है, एटलीस्ट MBA आपको स्किल सिखाएगा। एंड यस, ROI देखना जरूरी है, आपको इन्वेस्टमेंट देखना जरूरी है, एंड इन्वेस्टमेंट शुड बी अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। गोइंग इनटू एनी D कैटेगरी कॉलेज और एनी XYZ कॉलेज एंड सेइंग दैट कि मैंने 4 लाख में MBA कर लिया, वोंट टेक यू एनीवेयर। इट्स बेटर कि अभी आप जो कर रहे हो करते रहो। ठीक है, so that's what you need to understand. And I think this was the question. एक क्वेश्चन जो and we'll take the last 3 questions, Mitresh. एक क्वेश्चन जो मानसी का आ रहा है is how do we decide that हम किस स्ट्रीम के बने हुए हैं? मतलब MBA हमें कैसे हेल्प करेगा कि मैं फाइनेंस में जाऊं या मार्केटिंग में जाऊं, या we'll just go with the flow? Okay, so ठीक है, so to answering that question, Mansi, आप so MBA में the way the program is structured now, it depends. So what I am going to tell you is about 2-year programs. I am not sure about how 1-year programs are structured, which is an ISB or any other executive MBA. तो उसका स्ट्रक्चर नहीं पता मुझे, बट जो 2-year फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं MBA या IIMs के, they are designed in a manner कि the first year that you study in IIMs, right, they'll have all mandatory courses. So आपको फाइनेंस का भी कोर्स कराएंगे, वो HR का भी कोर्स कराएंगे, ऑपरेशंस का भी कोर्स कराएंगे, सबके कोर्सेज कराएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद द सेकेंड ईयर इज फुल ऑफ इलेक्टिव्स, जहां पे आपको इलेक्टिव लेने होते हैं। सो एवरी सेमेस्टर से पहले यू हैव टू बिड, कि आपके पास पॉइंट्स होते हैं, बिडिंग सिस्टम होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट इट्स बेसिकली आपको इलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से इलेक्टिव्स लेने हैं। सो अगर आपका इंटरेस्ट ऑप्स में है तो आप कंटिन्यूअसली सेकेंड ईयर में हर एक सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर ट्राइमेस्टर होता है, तो 3 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में आप 2-2 सब्जेक्ट ऑप्स के पढ़ो। अगर आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्ट, आई थिंक प्रोडक्ट के भी कोर्सेज होते हैं। डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, डेटा साइंस के कोर्सेज होते हैं। तो आपको पहले से डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। देयर आर प्रोग्राम्स लाइक SP Jain, जिसके अंदर आपको शायद पहले से स्ट्रीम डिसाइड करना होता है कि आपको ऑप्स करना है या फाइनेंस करना है या फिर IT करना है।
तो आई एम नॉट श्योर वहां पर कैसे होता है, लाइक हाउ देयर प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड एंड आपके पास स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी होती है नहीं होती है, बट एटलीस्ट आईएम्स के अंदर दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड इन ABCL की फर्स्ट ईयर मैंडेटरी कोर्सेज, जिसमें से IIM बैंगलोर इज अ लिटिल डिफरेंट, जिसमें हमें फर्स्ट ईयर के थर्ड सेमेस्टर में भी 2 सब्जेक्ट्स एज ए इलेक्टिव लेने को मिलते हैं, बट दैट इज लाइक ओनली स्पेसिफिक टू IIM बैंगलोर। A नहीं देता, C नहीं देता, L का आई डोंट नो। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पहले से डिसाइड करना ही है कि आपको क्या करना है। Okay, fine. The next thing is, so guys, मैं सारे क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा because FABM वगैरह I don't think Maitresh should be the right person. हम उस पे बाद में ले लेंगे। एक क्वेश्चन जो देखो उमंग आ रहा है and I think I can answer and Maitresh can see that whether I'm answering right or not, कि IIM के अंदर फीस बहुत हाई होती है, तो जो मिडिल क्लास है वो कैसे फीस मैनेज कर सकते हैं। सो उमंग, मेरा इसके अंदर क्वेश्चन ये है उमंग कि अगर यार तुम्हारे पास 25-30 लाख रुपए कैश होता तो तुम अब्रॉड से MBA कर लेते या अब्रॉड जाके पहले ही सेटल हो जाते। मैं तो ये बोलता हूँ भाई, अगर मेरे पास 25-30 लाख रुपए हार्ड कैश है, इसका मतलब भगवान की दया से घर पे पैसा वैसा बहुत है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से उमंग, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स इन IIMs के अंदर जाते हैं लोन पे ही जाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ देम आर ऑन लोन्स उमंग। और वो यही जो मैत्रेश बोल रहे थे, आप 1-to-1 मत देखो। अगर आपने 25 लाख रुपए फीस डाल दी IIM के अंदर, अब ये मत सोचो कि 25 लाख की मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी। पॉइंट इज, अंदर स्ट्रगल करना पड़ेगा, अंदर compete करो, प्लेसमेंट्स लो, और आप ये देखो आप अगले 60 साल तक वो 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर, राइट। और जो तुम पैकेज ले रहे हो, द काइंड ऑफ पैकेजेस कंसिडरिंग तुमने अगर मेहनत करी है, सो उससे इंस्टॉलमेंट भरा जा सकता है। और आप ये सोचो, आपका स्टार्टिंग 25 लाख है, 60 साल तक तो 25 लाख नहीं रहोगे ना, राइट। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान करनी पड़ेगी, ठीक है। मैत्रेश, आई होप, मेरे ख्याल से काफी बच्चे लोन पे ही पढ़ते हैं IIMs के करेक्ट, अंदर। करेक्ट, हाँ सर, लाइक ऑलमोस्ट आई वुड से 60-70% लोग लोन पे ही पढ़ते हैं। 70%, आई विल नॉट इवन से 60-70 तरफ ज्यादा होगा वो मेट्रिक। एंड मतलब इवन जिनके पास पैसे होते हैं उनके लिए भी, अगर आप एकदम बिल्कुल क्रूड फाइनेंशियल, एकदम लाइक बनिया पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, तब भी इट मेक सेंस टू टेक लोन, क्योंकि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम होता है कि आपको उतने सस्ते में कोई मार्केट में पैसा नहीं देगा। सो बनिया ने अपना बोल दिया कि सर हमने तो लोन से पढ़ा है। हाँ, गुड, हाँ, नाइस। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट 150 डेज रह गए हैं मैत्रेश कैट 22 के लिए। सो हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू मैनेज द टाइम। तुमने लास्ट 150 डेज के अंदर कैसे अपने टाइम को मैनेज किया था, सो दैट यू एंश्योर्ड कि मेरा जो प्रोग्रेस है वो एकदम सही पेस पे चलता रहे। श्योर। सो फॉर मी लास्ट 150 days, like I'm not like I never counted कि अब कितने दिन बचे हैं, but for me the strategy was always I wanted to improve on my weaknesses. So जब मैंने CAT preparation start करी थी, and probably शायद before that even, I knew that my biggest weakness was the English section. So मैं सिर्फ उसी पे focus करता था कि English section improve करना है। I knew from my engineering background कि I was good at maths and DILR was always a question mark, क्योंकि आप DILR में कभी expect ही नहीं कर सकते कि कौन सा question आएगा। So just a minute, Matresh, sorry to interrupt you. So सारे स्टूडेंट्स तुम यही पूछते रहते हो ना, DILR, देखो ये भी यही बोल, राइट। सो DILR मैत्रेश के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लम थी जितनी सबके लिए, और ये सालों साल से चलती हुई आ रही है। सो डोंट वरी एट ऑल। यस, ओवर टू यू मैत्रेश, सॉरी। Yes, हाँ, मतलब DILR के अंदर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। DILR इज ऑल अबाउट कि उसके अंदर ऑब्वियसली आप अगर एक मेथड से या लॉजिक से जाओगे तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जितना आपके पास टाइम होता है और जिस हिसाब से आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, उस हिसाब से यही होता है कि आपको उसके अंदर ट्रिक्स या वो कुछ कुछ तो ढूंढना पड़ेगा उस क्वेश्चन के अंदर टू सॉल्व इट इन अ फास्टर मैनर, ठीक है। एंड दैट इज वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन कि उस टाइम आपका दिमाग किस माइंड स्टेट, मतलब उस टाइम आपका क्या माइंड स्टेट है, आपको चमक रहा है नहीं चमक रहा है, मतलब लाइक नो वन कैन हेल्प इट। वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। सो इसलिए मेरा ये था, सो माय स्ट्रैटेजी वाज ऑलवेज कि इंग्लिश के लिए मैं बहुत ज्यादा लाइक रीडिंग और इन सब चीजों पे फोकस करता था, इन टर्म्स ऑफ कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माय स्कोर इन द इंग्लिश सेक्शन। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ कि न्यूज़पेपर रीड करना, बुक्स रीड करना, इंग्लिश लाइक इंग्लिश आर्टिकल्स रीड करना, टू इम्प्रूव माय अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड थिंग जो मुझे, एंड आई विल कम टू द पार्ट कि इंग्लिश में मैंने क्या क्या किया था एडिशनली दैट हेल्प मी अ लॉट,
But हाँ, so maths or DILR was always on a secondary, but उसपे like I used to practice every day. And then in terms of जो mock test थे, तो मैं like I would, again, this is very specific to me, मैं बहुत ज्यादा mock test नहीं देता था in the last 150 days, but towards the last 2 weeks, I started giving like one every day. But before that, मैं हफ्ते का एक देता था. But I used to give a lot of sectional tests. क्योंकि मुझे ये लगता था कि mock test के अंदर I'll be investing 3 hours versus English में मुझे ज्यादा focus करना है, तो मैं वहां पर sectional test दूंगा. So every day I used to give a English का sectional test. So that's how I went about my preparation. और जो एक इट्स अ फनी स्टोरी. इट्स बेसिकली एक मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था इंग्लिश का जस्ट आई थिंक 2 weeks बिफोर माय कैट. और ना वो लाइक आई गॉट अ नेगेटिव स्कोर देयर. ठीक है, सो आई स्टॉप्ड गिविंग टेस्ट्स. आई वाज लाइक कि इससे ज्यादा मैं अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिराऊंगा, अब जो भी होगा वो एग्जाम में देखेंगे. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि, तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि आपके नेगेटिव स्कोर आए या कुछ आए, तो डोंट गेट स्कैर्ड. अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना. और मतलब मेरा तरीका था कि मैंने टेस्ट देने बंद कर दिए. आई वुड नॉट सजेस्ट दैट टू एवरीवन. व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना. लेकिन लाइक डोंट गेट डीमोटिवेटेड. लाइक दैट्स ऑल. मतलब आपने बहुत टाइम से प्रेपरेशन करी है, तो इट्स जस्ट वन ऑफ कि आपका टेस्ट खराब चला गया, कुछ हो गया. कैट में सेम माइंडसेट से जाना कि मुझे ये एग्जाम लाइक क्रैक करना है. Okay, so last 150 days, what Maitresh is trying to say is, करते रहो, पढ़ते रहो, right? Whatever you want to do, just do that. ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, जो स्ट्रेटेजी तुम्हारे लिए काम कर रही है लो, बट रीड. आई मीन देखो, मैं हमेशा जो बोलता हूँ वो मैत्रेश खुद बोल रहे हैं दैट आई मीन ही वाज गिविंग लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन वर्बल, बिकॉज उसके दो रीजन है. बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ एन इंजीनियर, उसका मैथ्स और एलआर उसको पता था मैं फोड़ लूंगा, बट द पॉइंट इज वर्बल अगेन उसका भी यही कंसर्न था मैं शायद नहीं फोड़ पाऊं. सो ही वाज वर्किंग अ लॉट ऑन वर्बल. सो आप लोगों को अगर लग रहा है कि मैं क्वांट्स में नहीं फोड़ पाऊंगा तो क्वांट्स करो, अगर आपको लग रहा है इंग्लिश अच्छी है तो. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन टेक केयर ऑफ, राइट? ज्योति का क्वेश्चन आ रहा है, Matresh, what were your percentile in CAT overall and section wise, if you remember? Jyoti, I don't remember exact, like I remember exactly my overall percentile. Section wise मैं आपको ballpark number ही बता पाऊंगा. So overall my percentile was 99.49. My English का percentile was 98.6 something. My maths का percentile was 96.5 something. तो ये मेरे लिए काफी बड़ा शॉकर था कि मैथ्स में मेरी परसेंटाइल कम आई थी. आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट, बट दैट्स द थिंग कि उस टाइम उस दिन लाइक इन माय स्लॉट एंड वो वाला कैट 2017 जो था वाज मैथ्स वाज वेरी इजी. और मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने मैथ्स में 25 क्वेश्चन कर दिए थे आउट ऑफ 31. और फिर मैंने चिल ले लिया था एग्जाम के अंदर कि ठीक है, इनफ है, कर दिए हैं, मतलब विद 80% 90% एक्यूरेसी. बट द थिंग वाज कि वो इतना इजी था दैट एवरीवन स्कोर्ड. तो आई वाज लाइक सुपर लकी कि मैथ्स में मेरा परसेंटाइल कम था, बट इंग्लिश का मेड अप फॉर इट. एंड मेरा DILR में वाज 99.4 और 99.5 समथिंग. ओके, फाइन. देखो गर्वित, इज कोचिंग ऑलवेज नेसेसरी? अगर तुम मेरा से आंसर पूछोगे तो दो रनिंग अ कोचिंग ऑन माय ओन, मैं हमेशा बोलता हूं नहीं, कोचिंग इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. पॉइंट इज आज के टाइम में यूट्यूब वगैरह के अंदर सब कुछ अवेलेबल है दोस्त, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं. ऐसा तो हम लोग क्या कर लेंगे. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड मेंटरिंग, दैट्स इट, राइट? सो रेगुलर टाइम पे जब नेगेटिव मार्क आना, व्हाट मैत्रेश इज सेइंग, वर्बल में नेगेटिव मार्क आ गया, so I'm sure he must have gone to some of his mentors and said that कि सर ये क्या हो रहा है, and mentors ने बोला होगा कुछ मत कर, तूने प्रिपरेशन किया है, सब कुछ किया है. so ये mentoring, motivation, रेगुलर टाइम पे मिलते रहना वो ज्यादा जरूरी होता है, to be honest with you. और एक रेगुलरिटी बनी रहती है, that's it. because मैत्रेश, let's say इनके एग्जांपल में नो, he was working, राइट? सो वर्किंग करने के साथ साथ इसको मैनेज करना है टाइम, वो शायद कुछ एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करेगा, 2 घंटे किसी मेंटर के साथ बैठेगा. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी, आई मीन दैट्स समथिंग which helps as far as coaching is concerned. Mahendra Vyas बोल रहे हैं because he's working in some consultancy firm, Matresh. He's saying कि how to manage time along with work pressure. Can you just give a one-liner on that? Sure. So, Mahendra, like I can understand that it's very difficult, but that's the reason I also joined coaching. So मैं आपको बताता हूँ, जब मैं, so when I was working, I
so the year that I cleared CAT, that was my second attempt at CAT. The first attempt was in 2015. At that point of time I was also working, but मैंने proper time devote नहीं किया था to CAT preparation. But this time, and also did not join coaching. In my second attempt in 2017, I definitely joined coaching. The reason was only to get discipline in my schedule. So only weekend classes join करी थी मैंने. वीकेंड पे ही मेरे ख्याल से लास्ट में जॉब छोड़ा था, नहीं छोड़ा था लास्ट छोड़ा में? था yes, yes. हाँ, हाँ. So I started my CAT coaching along with my job in I think July or August, जुलाई में शायद, एंड जुलाई के अंदर 2 महीने मैंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया, एंड उसके बाद मतलब देयर वर अदर रीजंस एज वेल, बट आई लेफ्ट द जॉब एंड केम बैक होम, और फिर मैंने घर से लाइक एंड ऑफ सितंबर से लेकर के एंड ऑफ नवंबर, सो 2 months मैंने प्रिपरेशन करी थी विदाउट having a job and only dedicated towards CAT. Right, fine. But it is a difficult task, and if you feel like, so again very personal call होता है महेंद्र, कि अगर if you feel like कि नहीं मैनेज हो रहा है, तो आपको फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, MBA करना प्रायोरिटी है या करंट जॉब प्रायोरिटी है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक दैट कॉल कि छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अ लॉट ऑफ पीपल जो कि जॉब के साथ भी MBA like IIMs क्रैक करते हैं, तो it's not an impossible task. True. So last, your tips to students, whatever you want to say to the students, the last tip we want to hear from your side, Mitresh. ठीक, so I would just like, ठीक है, CAT की प्रेपरेशन के बाद और भी चीजें आएंगी like interviews, GDs, etc. But अभी before CAT I would just say कि अपने वीकनेस, लाइक जो हम लोग कहते हैं ना कि एनालाइज करो अपने टेस्ट्स को और एनालाइज करो एटलीस्ट कि आप कहाँ पे वीक हो, दैट इज लाइक सुपर इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप एनालाइज मतलब लाइक वीकनेस पे काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CAT, बिकॉज यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट कि आप एक सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा कर लोगे या दूसरे सेक्शन के अंदर बहुत अच्छा कर लोगे और दूसरा सेक्शन आपका जो सेक्शन वीक है ना उसकी वजह से, बिकॉज everyone would know that IIMs के अंदर there is a sectional cut off as well. तो अगर आप sectional cut off नहीं clear करोगे तो no matter आपकी overall percentile 99 point something भी है, अगर आपका DILR का sectional cut off नहीं clear हुआ तो आपको नहीं call आएगा. तो I would say कि कोई भी section weak नहीं छोड़ना है. तीनों सेक्शन, द बेस्ट पार्ट अबाउट CAT इज तीनों सेक्शन के अंदर उन्होंने टाइम बिल्कुल टाइम लाइक लिमिट कर दिया है कि 1-1 घंटा देना ही है तो देना ही पड़ेगा. बट वीकनेसेस मतलब दैट्स एंड ये नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा केस ले लो, मैथ्स में आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि मैथ्स तो मैं फोड़ दूंगा, एंड मतलब मेरा सबसे लोएस्ट परसेंटाइल था मैथ्स के अंदर. तो लाइटली नहीं लेना है किसी भी सेक्शन को, आप सारे सेक्शंस के लिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड वीकनेस पे ज्यादा फोकस करना है. मेरे लिए इंग्लिश लाइक वाज अ वेरी डेटरेंट, तो उसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा काम किया था, मतलब एंड काम इन द सेंस कि सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया था, मैंने आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम करियर लॉन्चर, सो प्रशांत सर से, रोहन सर से. उसके बाद आई इवन लाइक रीच्ड, और जब उनसे मेंटरशिप ली, थोड़ी बहुत चीजें करी, थोड़ा स्कोर इंप्रूव हुआ, आई केप्ट ऑन वर्किंग ऑन दैट स्कोर. फिर आई रिमेम्बर आर्क सर आए थे, उनसे भी मैंने एक सेशन लिया था अलग से कि कैसे इंप्रूव करूं. इवन आई स्पोक विद जीजो सर की कैसे इंप्रूव करूं, उनके कुछ वीडियोस, उनके कुछ मटेरियल्स देखे थे. तो कोचिंग इज गोइंग टू हेल्प यू उतना ही जितना आप उनसे मांगोगे, ठीक है. एक आपका शेड्यूल होगा, जो कोचिंग का शेड्यूल होता है वो तो करना ही करना है, पर उसके अलावा जो आपकी वीकनेसेस है एक्स्ट्रा टाइम दो और एक्स्ट्रा हेल्प मांगो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो. मतलब दैट इज ऑल आई थिंक आई वुड से कि आपको अभी करना चाहिए. मतलब बहुत ही सेल्फिश होकर के अभी बस आपको यही सोचना चाहिए कि मुझे अपने नंबर, मुझे अपने मार्क्स और मैक्सिमाइज करने हैं, और फिर मैं जितनी हेल्प ले सकता हूँ उतनी हेल्प मांगनी चाहिए आपको, चाहे कोचिंग हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे अन अकेडमी हो गया, चाहे फ्रेंड्स हो गए, जो भी है. और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है? Nothing, no questions as of now. So thanks Mitresh for giving us time. And सुनील यादव भाई ऐसे सैलरी वैलरी नहीं पूछते, क्या हो गया, मतलब मैं बता दूंगा उसकी सैलरी बाद में, डोंट वरी, ठीक है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन. आई होप ये सेशन आपको आपके एटलीस्ट थॉट प्रोसेस के लिए
थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूजफुल रहा होगा, बिकॉज आप शायद मेरे को, मैं जब बोलता रहता हूं तो शायद आपको मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं आएगा या कन्विंस नहीं होगे व्हेन यू लिसन फ्रॉम समथिंग, जो कि वहां जाके सारी चीजों को देख पाए हैं और वो पोस्ट IIM की जर्नी जी रहे हैं, प्री IIM की जर्नी जी रहे हैं. सो ऑल, आई मीन प्री IIM की जर्नी इन्होंने जी है. सो ऑल दिस थिंग्स व्हाट मित्रेश हैज डन, सो आई थॉट आई विल जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू so that you all will get benefit out of it. So thank you, Mitresh. Thanks a lot, and be in touch. Right. So Definitely. we will connect over the call. Thanks, everyone. Thank you. Thanks, students. Bye bye. Take care, guys. Thank you. All the best. All the best. Thank you, Mitresh. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Papa. Papa. Thank you, guys. Thank you. Thanks, everyone. Bye bye. Take care, guys. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Take care, guys. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you.